Dear students, you have already studied matrix. You have already studied matrix, and today we'll talk about a very important chapter, determinant. It's a very important chapter. With the help of this chapter, you can get at least 8 to 13 marks in the board examination. So look here, what is determinant? An arrangement of n cross n numbers a11, a12 and so on ann in which all the elements are square array between two parallel vertical lines is called determinants. N cross n. N cross n means in this determinant, number of rows and number of columns must be same, because square array. In determinant, number of rows and number of columns must be same. Example, determinant of A equal to this type we can represent A11, A12, these are parallel lines, and between these parallel lines there are elements A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, so on, A21 similarly, AN1, AN2, AN3, ANn. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम एलिमेंट यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए टू पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइन के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करना ही डिटर्मिनेंट है. मीन्स डिटर्मिनेंट को इस पैरेलल लाइन में एलिमेंट्स को लिखना, अरेंज करना, उसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट. मैट्रिक्स क्या जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे थे, लेकिन डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा. अंडरस्टूड? अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ विल यू सॉल्व? फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, expansion of determinant or we can say general solution of determinant. जैसे सपोज कोई एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, सपोज दिस इज रिटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and you have to find the value of this determinant. हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है. इसकी कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग जानेंगे. ओके दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, सपोज दिस इज द डिटर्मिनेंट A11, A12, A21, A22. This is the determinant of 2 by 2, 2 cross 2. You have to find the value of this. Okay, then how will you find? First of all, multiply this by this, means A11 into A22. Okay, माइनस A और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पे माइनस लगेगा हमेशा, तो A11 A22 माइनस A21 इंटू A12. सॉल्व करके जो आया बस यही हमारा आंसर. लुक हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 2 3 4. ओके, फाइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, मीन्स 1 इंटू 4 माइनस, and multiply this by this 3 into 2. So 1 into 4 4 minus 3 into 2 6 and 4 minus 6 you will get minus 2. That is your answer. Okay, this is the solution of determinant 2 by 2. And suppose a determinant is given 3 by 3 of order 3. Then how will you solve? A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. These are the elements. These are the elements and we have to evaluate this. हम लोग इसको दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं. इस डिटर्मिनेंट को दो टाइप से सॉल्व किया जा सकता है. एक तो हम लोग अलोंग फर्स्ट रो कर सकते हैं और अलोंग कॉलम्स भी कर सकते हैं. तो देखते हैं पहले हम लोग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग कैसे सॉल्व करेंगे, रो के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे. देखें A11 ये लिख लिया एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फर्स्ट एलिमेंट मीन्स अलोंग रो मीन्स हमें इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है. तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नोट कर लिया एंड नाउ लीव rows and columns passing through this element. You have to leave columns and row passing through this element means A11. Leave A11. Then what will you get? This and this cancelled. Then what will you get? A22 and A32, A23, A33. Look once again. First of all, we have to write first element and after that we have to leave rows and columns passing through A11. A11 से देखिए कट कर दिया मैंने, जो बचा क्या बचा A22, A32, A23, A33 मैंने वो नोट कर दिया. इसके बाद तुम्हें लगाना है माइनस, ये हमेशा लगेगा माइनस. एंड देन आफ्टर write second element of first row means A12 and after that same to same leave row and column passing through A12 means this and this cancel. Then what will you get? A21, A31, A23 and A33. Clear? And then after you will write plus. First term positive, second term negative and third term also positive. Okay, and now write third element of this first row A13 and then after write this column and this row cancelled. Then what will you get? A21, A31, A22, A32. Okay, and this and this and this we can solve in the previous method, means this into this minus this into this, this into this minus this into this. Similarly we can solve easily. Okay, look once again. Suppose this determinant is given, and we have to find the value of this determinant. Along row, how will you solve? Along row we will solve, first of all we have to write first element of first row and then after we have to leave rows and columns passing through first element. This and this cancel, then you will get A22, A32, A23, A33 we have written here. And after that second element write A12, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन आफ्टर पॉजिटिव. A12 लिखा. अब देखें ये और ये कैंसिल कर दिया मैंने, क्या बचा A21, A31, A23, A33 प्लस थर्ड एलिमेंट A3, A13, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा A21, A31, A21, A31, A22, A32, A22, A32. Okay, and now you can solve easily. A11, A22 into A33 minus A32 into A23 minus A12 into A33
A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13 A21 इंटू A32 एंड माइनस A31 into A22. Okay, after that you will simplify and you can get easily answer. Understood? This is the process of evaluation of determinant along row. Okay, similarly we can solve along column. और एक बात ध्यान रखें, चाहे रो के अलॉन्ग सॉल्व करें चाहे कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट में आंसर सेम ही आएगा. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इफ वी वांट टू सॉल्व सपोज अलॉन्ग कॉलम, same to same process. First of all write A11 and after that cut along rows and along column. You will get A22, A32, A23, A33 and then after write minus A21 दूसरा एलिमेंट और उसके बाद इसको कट कर दें. सेकेंड एलिमेंट हमने लिया A21 और A21 लेने के बाद देखें इसको और इसको कट कर दें. अब बचेगा क्या हमारे पास A12, A32 ये और ये मैंने कट किया था A12, A32 और क्या बचा A13, A33 एंड देन आफ्टर प्लस नाउ राइट थर्ड एलिमेंट A31. अब A31 देखिए हमने लिखा, इसको और इसको कट कर देंगे, बचा क्या A12, A22, A13, A23. ओके, और इसको तो हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं. ये इंटू माइनस दिस इंटू दिस एंड माइनस ये. सिमिलरली यू कैन सॉल्व. ओके, वंस अगेन if we want to solve along column this matrix, then first of all we have to write first element of first column A11 and cut along these A22, A32, A23, A33 minus A21 ये एलिमेंट सॉरी ये रो और ये कॉलम कट जाएगा A12, A32, A13, A33 प्लस एंड लास्ट A31 रिटर्न कैंसल्ड A12, A22 एंड A13, A23. ओके, ऐसे ही हमने लिख लिया. अब ऐसे हम इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं बिल्कुल आसानी से. और पहले जो हमने सॉल्व किया था अब जो सॉल्व किया है, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा. जिस तरीके से आपको आसानी लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके बारे में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. अब ये माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप ये सब कुछ जान गए बहुत अच्छे से तो आप क्वेश्चन बहुत इजी में सॉल्व कर लेंगे. ओके, देखें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. पहले हम लोग बात कर लेते हैं माइनर की. मीन्स इसका कोई हम जैसे सपोज एक मैट्रिक्स दी हुई है, सॉरी डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, 32, 33. This is given and we have to find minors. जितने एलिमेंट्स हैं उतने माइनर्स होते हैं. सभी हर एक एलिमेंट का माइनर होता है. There are 9 elements. Here there are 9 minors of corresponding element. So tell me the minor of A11. इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं MIJ. This type MIJ. रो कॉलम. तो A11 इसका मुझे बताना है माइनर. माइनर ऑफ A11. अभी हमने आपको एक
चीज़ सिखाई थी रोज और कॉलम कट करने के लिए, कि जो एलिमेंट नोट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स कट कर देते हैं, जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं उसको नोट कर लेते हैं। बस यही तो माइनर है। देखिए कैसे, A11 माइनर ऑफ A11, दिस एंड दिस कैंसल्ड, व्हाट इज लेफ्ट, A22, A32, A23 and A33. This is the minor, means M11. Minor of A11 is this. Can you tell minor of A32? Can you tell minor of A32? Of course, you can tell very easily. 32 cut corresponding rows and columns passing through A32. ये and ये 32 ये cancelled. Then what is left here? A11, A21, A13 and A23. Answer. Minor of A32 is A11, A21, A13, A23. Okay. Similarly thing, minor of A13. आप लोग खुद सोचिए कि माइनर ऑफ A13 क्या है, आप लोग देखें और सोचिए कि माइनर ऑफ 13 क्या हो सकता है। तो माइनर ऑफ A13 इज कैंसल्ड, देन व्हाट इज लेफ्ट, A21, A31, A22, A32. दिस इज द माइनर ऑफ A13. क्लियर? नाउ विल टॉक कोफैक्टर्स. व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर्स, अगर आपको माइनर निकालना आ गया तो कोफैक्टर बहुत आसान। कोफैक्टर कैसे किसी एलिमेंट का फाइंड करते हैं? A11, A12, A13, A21, A32 एंड A33. अब मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। अगर आप माइनर फाइंड कर लिए तो कोफैक्टर बहुत इजी में फाइंड कर लेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं हम आपको फाइंड करना। सपोज मुझे माइनर कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर भी जितने माइनस होते हैं उतने कोफैक्टर्स भी होते हैं। तो सपोज हमें कोफैक्टर फाइंड करना है A11 का, तो सबसे पहले आप माइनर तो जानते ही होंगे, आप माइनर नोट कर लें क्या होगा। माइनर ऑफ A11 इज ये एंड ये कैंसिल, क्या बचा, A22, A32 एंड A23, A33. ओके, अब कोफैक्टर मुझे फाइंड करना है, मैंने तो माइनर नोट कर दिया। कभी भी कोफैक्टर आपको अगर फाइंड करना तो सबसे पहले आप उसका माइनर नोट कर दें। इसके बाद यहां पे देखें ये कितना है, मींस एलिमेंट जो है वो है कौन सा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट A11 ना। आप इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम, ये जो यहां पे ये लिखा है, इसको आप ऐड करेंगे। ऐड किया मैंने तो 1 + 1 कितना आया, 2 आया। अगर आपको इवन मिलेगा तो आप आगे लगाएंगे प्लस, और अगर यही ऐड करके मिले, सपोज अभी मुझे फाइंड करना है A23 का, इसका आपको फाइंड करना है कोफैक्टर, तो A23 पहले ढूंढे कहाँ पे है, A23 हमें ये मिला, तो ये करस्पॉन्डिंग कट गया, बचा क्या, A11, A31, this and this cancel, A11, A31, A12 and A32. ओके, बट आप इसको ऐड करके देखेंगे पहले, तो 2, 3 क्या मिला, 5 मिला, और ये 5 है क्या, ऑड, और अगर ऑड मिलेगा आपको तो आप आगे क्या लगा देंगे, माइनस। बस इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस। ओके, है ना बहुत आसान। तो यहां पे ये कोफैक्टर्स निकालने की बात हुई। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक्सपेंड या फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट if A equal to given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? देखें, अभी जो मैंने आपको बताया था एक्सपेंड करना, वैसे ही एक्सपेंड करेंगे. तो आप कैसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, रो के लॉन्ग या कॉलम के लॉन्ग? चलिए रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट नोट कर लेंगे. नोट कर लिया, और इसके बाद हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के अलोंग रोज एंड कॉलम्स को कट कर देंगे. जो बचा उसको सॉल्व करेंगे. क्या बच रहा है, 5 6 8 9. ओके, और आगे क्या फिर लगाएंगे, माइनस. माइनस के बाद सेकंड एलिमेंट रो के अलोंग अगर सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो. ओके, 1 लिख लिया, बचा क्या 5 8 6 9. सेकेंड एलिमेंट -2. अब इसको कट करें ऐसे, ये और ये कट गया. बच रहा कितना है, 4 7 6 9. एंड देन आफ्टर प्लस एलिमेंट इज 3 लिख लेंगे. कट करें इसको, व्हाट इज लेफ्ट हियर, 4 5 7 8. 4 5 7 8. अब इसको तो हम बहुत इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं. कैसे, 1 5 × 9, 5 9 ज़ा 45 माइनस 8 6 ज़ा 48 माइनस 2, 4 9 ज़ा 36 माइनस 7 6 ज़ा 42. एंड ऑल्सो प्लस 3, 4 8 ज़ा 32 माइनस 7 5 ज़ा 35. 45 minus 48, you will get -3, and -3 into 1, -3 -2 bracket 36 minus 42. 36 minus 42 you will get -6, and plus 3, 32 minus 35 you will get -3. Okay, solve. -3 -6 into -2, -2 into -6 you will get here +12, and +3 into -3 you will get here -9. On solving this, -3 -9 -12 +12, and you will get here 0. This is your answer. This is the general solution of determinant of A. If you want to solve, suppose along column, you can solve. Similarly, you can solve, and you will get same answer, that is 0. Understood? But कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनको हमें डायरेक्ट अगर हम ये एक्सपेंड करें तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. या ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा था, इसको विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करना, मतलब एक्सपेंड नहीं करना. इस बार विदाउट एक्सपेंडिंग यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तब कैसे सॉल्व करेंगे? या सपोज हमने एलिमेंट कुछ ऐसे लिख दिया 2 3 4 5 6 7 2 3 4. अब हम बिना सॉल्व करे इसका क्या आंसर बता सकते हैं? बता सकते हैं. हमने इसको देखा, मैं इसको कह सकता हूँ इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन आपको नहीं पता कैसे 0 होगी. तो उसके लिए हमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ जाननी होंगी. उन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग जान लेंगे तो ये थोड़ा और इजी बन जाएगा. प्रॉपर्टीज देखें. कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हम लोग अगर एक्सपेंड करेंगे इसको, तो एक्सपेंड करने पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आएंगी. लेकिन अगर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो हम जान लें बहुत अच्छे से, तो हम इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चंस अगर कैसा भी आ जाए, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. देखिए प्रॉपर्टीज़, सम प्रॉपर्टीज़. Property number 1, if all the elements of any row or any column is
0, देन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 होंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। देन द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज 0। आपको नहीं सॉल्व करना है। अगर आप देख लें कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 है, सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उसकी वैल्यू आप बिना देखे लिख दें 0, बिना सॉल्व करें, विदाउट एक्सपेंशन। सपोज जैसे लिखा है 1 2 3 0 0 0 4 5 6, क्या आपको कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 दिख रहा है? दिखा होगा। कौन सा? सेकंड रो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। वैल्यू क्या होगी इसकी? 0 होगी। अंडरस्टूड? जैसे ये लिखा है 1 0 5 3 0 6 5 0 9। आप क्या इसकी वैल्यू 0, क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं? सेकेंड कॉलम इज 0, ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम इज 0, then the value of this determinant will also be 0. Okay, this is the first property. If all the elements of any row or any column is 0, then the value of given determinant will also be 0. And now second property, very interesting properties. Property number 2. Property number 2 is if two rows or two columns are identical. If two rows और two columns are identical, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी टू रो या किसी भी टू कॉलम्स के सारे एलिमेंट एक ही जैसे हैं। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, सपोज लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 या 3 4 5 6 7 1 3 4 5 एंड 1 2 3 ऐसे लिखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, यहां पे आपको कोई रो और कोई कॉलम क्या एक ही जैसी दिख रही है? कोई दो रो या कोई दो कॉलम। तो हमें तो फर्स्ट रो और सेकंड रो एक ही जैसी दिख रही है। एक जैसी दिखी, इसमें देख सकते हैं आप, फर्स्ट रो सेकंड रो एक जैसी है। इफ टू रोज और टू कॉलम, या तो दो रो हो, सपोज दो रो ऐसे करके लिखा होता 1 1 4, टू कॉलम्स, ये देखिए 1 1 4 1 1 4, C1 एंड C2, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम here are identical, then what will be? Then the value of given determinant will also be 0. अगर आपको कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसे दिख जाए, आप इसको सॉल्व नहीं करना, आपको सीधे लिख देना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ओके, मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल ऑल्सो बी 0. क्लियर? एंड द थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? सपोज एलिमेंट इज गिवन A B C D E
F, G, H, I. These elements are given and we want to change rows into columns and columns into rows. मतलब हम चेंज करना चाहते हैं कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम्स में. तो कैसे चेंज करेंगे? तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ABC, ABC, DEF, DEF, GHI, GHI. Means if we want to change rows into columns and columns into rows, we can change. There is no effect on the given determinant. Rows, if we change rows into columns and columns into rows into corresponding rows, then the value of determinant will be same. Determinant will be same. मतलब कि अगर हम कुछ हमें सॉल्व कर रहे क्वेश्चन, हम चाहते हैं कि रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना. जैसे ABC फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम चेंज कर दिया. सेकंड रो था, सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया. थर्ड रो था, थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया. चेंज कर सकते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर मैं इसको सॉल्व करूं और इसको सॉल्व करूं, एक्सपेंशन करूं दोनों को एक्सपेंड कर दूं, तो उस डिटर्मिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. एंड नाउ फोर्थ प्रॉपर्टीज. सपोज डिटर्मिनेंट ऐसे लिखी हुई है, यही वाली ले लेते हैं, ABC वाली, ABC, DEF, GHI, ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. और इसमें हम रोज और कॉलम्स को, मीन्स कोई भी रोज और कोई भी दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कराना चाहते हैं. करा सकते हैं, कोई भी करा सकते हैं, बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी. जैसे हम फर्स्ट रो एंड थर्ड ले लेते हैं. फर्स्ट और थर्ड रो को हम आपस में इंटरचेंज कराना चाहते हैं. मीन्स GHI ऊपर लिखना चाहते हैं, DEF ABC लिख सकते हैं, बट आगे क्या लगा देंगे? माइनस. तो क्या हुई प्रॉपर्टी फोर्थ? If we want to interchange, या if we change interchange two rows, interchange rows and or two columns. If we interchange two rows or two columns, then the value of determinant sign of determinant is changed. मीन्स अगर हम इसको चेंज करना चाहें, मीन्स जो आपस में कोई दो रो या कोई दो कॉलम्स इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो हम इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं. बट क्या है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव लगा देंगे, अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है. जैसे देखें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके जैसा. लिखा हुआ है 1
ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ, ये लिखा हुआ है। मैं इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करना चाहता हूँ, तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे बी क्यू ई ए पी डी सी आर एफ, बट आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। आगे हमें इसको इंटरचेंज करना है, फिर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, फिर आगे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। मीन्स अपनी जो यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। ओके, अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना आप लोगों को इतना याद रखना है। 4th प्रॉपर्टी तक जितना मैंने तुम लोगों को बेस बताया है उसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अगली वीडियो में हम लोग जो है प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7 और उस पर बेस्ड को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।